یسوع المسیح کے پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی اور میں ہوں آپ کا میزبان بشپ ڈومنک جاوید۔ ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم بائبل مقدس میں سے ویسے تو ہر ایک لفظ، ہر ایک شوشہ، ایک ایک نقطہ بھی جو ہے وہ سچے موتی بائبل میں پروئے ہوئے ہیں۔ ہم خاص باتیں آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، اور آج جو مضمون ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ آگ کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور آگ بھی کون سی؟ ہم روح القدس کی آگ کی بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت مہمان ہوں گے۔ میری بیٹی ہیں، ریسنٹلی یہ کوریا سے ایم کر کے آئی ہیں، ریورنڈ اجالا ہنس۔ یہ پاسٹر جوزف سی لال کی بیٹی ہیں، اور یہ پاکستان کرسچن پریئر منسٹری کی ڈائریکٹر ہیں۔ اور یہ جو ان کا چرچ ہے یہ 97 دلکشا میں ہے۔ سیمنری انہوں نے کوریا سے کی ہے، ماسٹر آف ڈیوینٹی، ساؤتھ کوریا ٹاش ٹرینیٹی گریجویٹ یونیورسٹی سے، اور وہیں سے یہ اڈلین ہو کر آئی ہیں۔ انہیں اڈلین کیا ہے کورین ایسوسی ایشن انڈیپینڈنٹ چرچ اینڈ مشن نے، اور آج کل یہ پاکستان میں خدمت کر رہی ہیں۔ نہ صرف یہ بائبل کی اسکالر ہیں، انہوں نے سیمنری کی ہے، یہ ڈاکٹر بھی ہیں، انہوں نے ڈاکٹر آف فارمیسی کی ہے۔ اس اعتبار سے نہ صرف میں ریورنڈ کہوں گا، یہ ڈاکٹر بھی ہیں۔ بیٹا، سچے موتی پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج بہت خوبصورت ہم بات کریں گے۔ اس سے پیشتر کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، ہم کریں گے ایک دعا، اور اس دعا میں رہنمائی کریں گی بیٹی اجالا۔ پریز گاڈ۔ ہم سارا جلال اور عزت خداوند کے نام کو دیتے ہیں۔ لارڈ وی گلوریفائی یور نیم، لارڈ وی اپلفٹ یور نیم، لارڈ تھینک یو لارڈ۔ خداوند اس وقت کے لیے، اس پروگرام کے لیے شکر ادا کرتی ہوں، بشپ صاحب کے لیے خداوند، اس ٹیلی ویژن کے لیے خداوند خدا، اور جتنے ناظرین آج یہ کلام سنیں گے خداوند ان کے لیے برکت چاہتے ہیں، اور اپنے لیے اور بشپ صاحب کے لیے خداوند خدا ہم لارڈ وی سبمٹ آر سیلوز انٹو یور ہینڈس خداوند، اور خدا کا پاک روح خداوند خدا ہم میں سے ہو کے بولے۔ تجھے اولین درجہ دیتے ہیں خداوند، یسوع کے نام سے آمین۔ ناظرین، آج ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے خروج کی کتاب، اس کا 24 باب، اور پھر ہم 15، 16، 17 اور 18 آیت کی تلاوت کریں گے۔ خروج کی کتاب 24 باب، 15، 16 اور 17 آیات۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تب موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا اور پہاڑ پر گٹلا چھا گئی، اور خداوند کا جلال کوہ سینا پر آ کر ٹھہرا، اور 6 دن تک گٹلا اس پر چھائی رہی، اور 7ویں دن اس نے گٹلا میں سے موسیٰ کو بلایا، اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خدا کے جلال کا منظر بسم کرنے والی آگ کی مانند تھا، اور موسیٰ گٹلا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور وہ 40 دن اور 40 رات رہا، اور وہ وہاں پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ بیٹا، آج ہم بڑی ایک بات کو لے کر چلیں گے۔ ہم آگ کو ڈیفائن کریں گے، آگ کیا ہے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے تو پہاڑ پر، کوہ سینا پر جلال اس کا بسم کرنے والی آگ کی مانند ہے۔ جیسے بیٹا ہم دیکھتے ہیں روزمرہ میں بھی ہم کوکنگ کرتے ہیں تو آگ کی ضرورت ہے، کسی چیز میں یہ بھی آگ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ مارکیٹس میں گھروں میں آگ لگ گئی اور گھر کے گھر جو ہیں وہ جل گئے، اور بہت ساری جگہوں پر ہم نے بہت ساری
कॉलोनीज में भी आग का मंजर देखा और कॉलोनीज तक जल गई। सब कुछ फैक्ट्रीज को देखते हैं कई दफ़ा वो भी आग से जल जाती हैं, ये भी एक आग है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो आग है इसको हम और तरीके से डिफाइन करेंगे। एक आग और भी है, तीसरी आग, जी बिल्कुल, जो जहन्नम की आग है। Yes. और कहा गया है कि वो गंधक से जलने वाली झील है और जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं। वो भी गुनाहगारों के लिए एक आखिरी सज़ा है कि वो उस आग में जलेंगे। यहाँ पर बेटा हम बात करेंगे, इस आग को हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये जो पहाड़ की चोटी पर खुदावंद का जलाल बसम करने वाली आग की मानंद था। बसम करने वाली अगर आग थी, अगर ये बसम कर रही थी तो मूसा वहाँ पे चला गया, उस आग में गया। फिर एक और बात को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, उस झाड़ी को भी। आप इस आग को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये बसम करने वाली आग जो है? जी, जिस तरह से हम ये हवाला ही पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है, बनी इसराइल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदावन के जलाल का मंजर। सो ये खुदावन के जलाल का मंजर किस तरह का था? खुदा की प्रेजेंस, खुदा की मौजूदगी, ये बसम करने वाली आग की मानंद। प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड। और बाज़ औक़ात हम लोग दुनियावी तौर पर हम कहते हैं आग, लोग जो है जिस तरह नए अहदनामे के अंदर जो है रूल कुद्दस जब नाजिल हुआ तो आग की भटती हुई ज़ुबानें, आज भी लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं और जिससे लोग इस आग को समझते हैं शायद ये हमारे जज्बात हैं, शायद ये पैशन है। लेकिन ये हवाला हमें बता रहा है कि आग जो है वो एक शख्सियत है और वो खुदा की ज़ात है। खुदा की ज़ात, जब खुदावन जो है अब पहाड़ की चोटी पर, मूसा ने जब उस झाड़ी को भी देखा तो उसने कहा ये कैसी आग है? जैसे आपने कहा कि आग जो है वो तो सब कुछ जला देती है, लेकिन हमारा खुदा ऐसी आग है कि वो झाड़ी जो थी वो बुझती नहीं थी और आग बुझती नहीं थी और झाड़ी बसम नहीं होती थी। यही बात, इतनी खूबसूरत बात कि जो दुनियावी आग है वो तो शायद हम ज़रा सा भी, मेरा एक बाल भी कोई हो तो एकदम से आग लग जाएगी और शायद स्टूडियो के अंदर एक जो है कहीं से भी कोई आग लग जाए तो ये सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन हमारा खुदा ऐसी आग है कि हम बर्न आउट नहीं होते, लेकिन वो आग जो है खुदा के जलाल को ज़ाहिर करती है, खुदा की प्रेजेंस को। और एक खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी हुई है, 7वें दिन उसने घटा में से मूसा को बुलाया। खुदावन जब अपीयर होता है, आग खुदा की मौजूदगी को, उसकी प्रेजेंस को ज़ाहिर करती है, तो ये एक ऐसी आग है जिसमें से खुदा बोलता है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि आग में से पुकारा जा रहा है। और फिर जैसे आपने कहा कि वो झाड़ी ना जलती थी और ना बसम होती थी, और वहाँ से भी हम देखते हैं कि खुदा ने मूसा को पुकारा है और आग में से होकर खुदावंद हमें पुकारता है। और ये आग नाज़रीन कैसी है कि ये आग जलाती नहीं, बल्कि अगर मैं कहूँ कि ये बड़ी ठंडी सी आग है। और कैसे है, और खुदा के लोगों के लिए बड़ी ठंडी आग है, लेकिन बसम करती है। और किन किन चीज़ों को ये बसम कर सकती है? मैं ये कहूँगी आग जो है वो कभी भी ठंडी नहीं हो सकती। नहीं, मैं लेकिन हाँ, हमें जलाती नहीं है, उस नज़रिए से हम कह सकते हैं। जब ये आग हमारे अंदर आती है तो ये हम जो ठंडे मसीह है ना, हमें फायर पे अपलिफ्ट कर देती है। मैं वही बात कर रहा था, हाँ जी, कि भले ये ठंडी आग है, लेकिन ये हमारे अंदर से हमारे गुनाह को जला देती है, हमारी बदियों को जला देती है, हमारी बुरी हरकत को जला देती है, हमारी उन चीज़ों को जो खुदा के हुजूर पसंदीदा हैं वो जलकर बसम हो जाती हैं। लेकिन हमारा वजूद जो है वो नहीं जलता। हमारे वजूद के लिए ठंडी आग, इसलिए मैं इसे कहता हूँ। और फिर हम बात कर रहे थे बेटा एक कि आग की फटती हुई ज़बानों के बारे में। जी, कि अब जब हम देखते हैं ईद पेंतीकोस्त के दिन, जी, आग की सी फटती हुई ज़बानें उन पर आ गईं। वो बालाखाना में थे, 120 की जमात, इंक्लूडिंग मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट। जी। और फिर हम देखते हैं कि अगर आग की सी फटती हुई ज़बानें उन पर आकर ठहरी
कितनी ज़ुबानें, 120 लोग वहाँ पर थे, बिल्कुल। 120 लोग की जमात, और कमरे को किस कदर गर्म हो जाना चाहिए था, गूंज क्या उठा क्या वो जल जाना चाहिए था कि नहीं जल जाना चाहिए, हुआ क्या ओह, कि कमरा गूंज उठा। गूंज उठा। हम एक तो आग से डिफाइन कर रहे हैं जी जी। कि आग जो है फटती हुई ज़ुबानों की मानद उन पर आकर ठहरी, और उससे उन्होंने क्या पाई, कुव्वत पाई। कुव्वत पाई। इस आग से हम कुव्वत पाते हैं, इस आग से हमें एनर्जी मिलती है, Amen. इस आग से हमारी जो बुज़दिलियाँ हैं वो ख़त्म होती हैं, हमारी कमज़ोरियाँ जो हैं वो शाहज़ोरियों में तब्दील हो जाती हैं, और फिर ये आग एक सिंबॉलिक है। यस। सिंबॉलिक फायर जो है, ये जब आग नाजुल हुई तो ज़ोर की आंधी का सुन्नाटा, जैसे ज़ोर की आंधी का सुन्नाटा होता है, और फिर क्या है कि वो जहाँ पर बैठे थे वो घर लरज़ गया। गूंज ये कैसी बात है, गूंज कैसी है, सुन्नाटा कैसा है, आग कैसी है। नाज़रीन कहीं ना जाइएगा, यहाँ पर वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और बड़ी खूबसूरत बातें हम सुनेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम रूहुल कुदुस की खासियत की बातें कर रहे थे, और बड़ी प्यारी बातें, ये आग क्या करती है, इस आग की तासीर क्या है, इस आग में होकर खुदावंद किस तरह काम करता है। आइए नाज़रीन, हम एक और बात को देखते हैं। बेटा, हम इस आग के बारे में ही बात करेंगे। पाकरू की आग जो है, पाकरू की आग की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगियों में, और पाकरू की आग की अहमियत क्या है कलीसियाओं में। पाकरू की अहमियत की बात जो है, हम जो उसके मानने वाले हैं, नजात याफ्ता हैं, उसके लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों में इसकी अहमियत क्या है। जिस तरह से हमने अभी अपने पहले हिस्से में देखा कि पुराने अहदनामे में खुदा आग में से हो के आग में कोहे सीना पर और जलती हुई झाड़ी में मूसा को दिखाई दिया। नए अहदनामे में जब खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये वादा किया कि मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें रूह से और आग से बपतिस्मा देगा। तो जब हम रूहुल कुद्दस नाम में पाते हैं और उसकी गहरी अनॉइंटिंग में जाते हैं, उसके पाकीज़गी में जाते हैं, तो रूहुल कुद्दस की आग जो है वो इस चीज़ का सिंबल है कि हमारे अंदर से गुनाह, जैसे बिशप साहब ने पहले कहा, हमारे अंदर से ऐसे गुनाह जो कि हमारी ऐसी आदतें बिशप साहब जो हम दूर नहीं कर सकते। पाक रूह की आग जब हमारे अंदर आती है वो हिडन सीक्रेट गुनाहों को मिटा देती है और खुदा की पाकीज़गी को ले आती है। और हम अपने अंदर, जब हिस्कियल कहता है 36 चैप्टर के अंदर कि मैं, खुदा का वादा क्या था, नए अहद का वादा, कि मैं तुम्हारे अंदर नया दिल और नई रूह डालूंगा। जब पाक रूह की आग हमारे अंदर आती है तो नया दिल बना देती है। वो दिल जो गुनाह करने वाला था, जो कि नाफरमान था, बुत परस्त, लालच, सरकशी, खुदा की पाक रूह की आग की पावर, उसकी कुव्वत हमारे अंदर से हर तरह के गुनाह को मिटा देती है। दूसरी बात, इसकी अहमियत ये है कि जब हमारे अंदर रूहुल कुद्दस की आग होती है तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेशक, हालेलुया। पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि एलिया का मुकाबला हुआ बाल के नबियों के साथ, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि वो ही खुदा है, वो खुदावंद हमारा खुदा है जो आग को नाजिल करे। और खुदा ने जब आग नाजिल की तो बाल के नबी जो थे, सब जो थे, वो अपने सर नीचे झुका दिए। उन्होंने कहा कि तेरा खुदा ही खुदावंद है तुम्हारा। और हम देखते हैं इसको, अगर थोड़ा सा हम इस बात को थोड़ा सा तफसील में देखें तो सारा दिन बाल के नबी अपने आप को मारते रहे, नोचते रहे, जख्मी करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और चलाओ, शायद तुम्हारा खुदा जो है वो सोया हुआ है, वो सुनता नहीं, और ऊंची बोलो। और जब एलिया की बारी आती है तो फिर खाई भी खोदी है, पानी भी डाला है, और खुदा की आग जो है
خدا کی آگ اس قربانی کو قبول کرتی ہے اور وہ قربانی بسم ہوتی ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ بسم ہوگی ضائع ہوگی، خداوند کے حضور قبول ہو گئی. بالکل. یہ آگ ہمیں قبولیت کی طرف بھی لے کر جاتی ہے. ایک چھوٹی سی میں آپ کو سٹوری سنانا چاہوں گی آگ کے حوالہ سے، کہ ایک جادوگر تھا، اس نے جو اس کو ایونجلائز کیا گیا، اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اور بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ تو کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا میں اپنے جادو کے تھرو جو تھا مسیحوں پہ لعنت بھیجتا تھا. اس نے کہا تجھے پتہ کیسے چلتا تھا کہ یہ مسیحی ہے؟ اس نے کہا ان کے دل کے اوپر آگ کا شعلہ ہوتا تھا. اس نے کہا لیکن کیا تو سارے مسیحوں کو ہی قرض کرتا تھا، ان پہ لعنت بھیجتا تھا؟ اس نے کہا نہیں، کچھ مسیح ایسے تھے جن کے سر سے پاؤں تک وہ آگ میں لپٹے ہوئے تھے، آگ ان کو پروٹیکٹ کی ہوئی تھی، اور وہ ایک ایسی زبان بولتے تھے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. ان کو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. سو میرے عزیزو، جب پاک روح کی آگ ہمارے اندر ہوتی ہے، شیطان ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا. اس لیے ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے اور پاک روح کی آگ کی ضرورت ہے. ناظرین، ہم نے بڑی خوبصورت بات سنی ہے کہ جس کے گرد پاک روح کی آگ ہے اس کا ابلیس کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور آج بھی وہ لوگ جو پاک روح میں ہیں، جو روح میں ہو کر چلتے ہیں، روح میں ہو کر خداوند کی تعریف کرتے ہیں، روح میں ہو کر خداوند کی ستائش کرتے ہیں، روح میں ہو کر خدا کا کلام دوسروں تک لے کر جاتے ہیں، ان کا ابلیس کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور کبھی ایسا ممکن نہیں کہ روح ان ابلیسی قوتوں کو، ان تاثیروں کو جلا کر بسم نہ کر دے. بیٹا، ایک اور بڑی پیاری بات ہم کہیں گے، ایک اور بڑی پیاری سی بات ہم سیکھیں گے کتاب مقدس میں سے. یوحنا رسول نے کہا کہ میرے بعد جو آتا ہے وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. کوئی اور شخص روح اور آگ سے بپتسمہ نہیں دے سکتا تھا. اور یہ جو یسوع کے بارے میں کہا گیا کہ روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کے بارے میں آپ ناظرین سے کیا بات کریں گے؟ جی ہاں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے وعدہ کیا میرے بعد جو آئے گا وہ مجھ سے بڑا ہے اور وہ روح سے اور آگ سے بپتسمہ دے گا. سو یہ روح القدس کا ہی بپتسمہ ہے، لیکن اس کا ایک اور ایسپیکٹ ہے. جب ہم پاکیزگی کے معیار میں اور روح القدس جب ہم پہ نازل ہوتا ہے، اس کی ہم فلنس کو، اس کی گہری حضوری کو ہم کہہ سکتے ہیں. سو عید پینتیکوست کے جب روح القدس نازل ہوا تو آگ کی بڑھتی ہوئی زبانیں نازل ہوئیں اور وہ سب قوت سے بھر گئے. سو پاک روح کی جو آگ ہے وہ ہمیں یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے، خدا کی پریزنس کو، خدا کی موجودگی کو، پاکیزگی کو، اور ہمارے اندر پیشن کریٹ کرتی ہے فار ایونجلزم. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو وہی پطرس جو ڈرا ہوا بیٹھا تھا، اس نے دلیری سے وہی جس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا تھا، اس نے دلیری کے ساتھ روح القدس سے معمور ہو کر اس نے کہا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے مسیح کو مصلوب کیا. اور اس نے یسوع مسیح کی منادی دلیری کے ساتھ کی، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یک وقت 3000 کی جماعت جو ہے وہ یسوع پر ایمان لے آئی. ایک اور ہم اس واقعہ کو دیکھتے ہیں یہاں پر جی کہ یہاں پر تقریباً کوئی جو پطرس اور شاگرد تھے وہ گلیلی تھے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً کوئی 16 زبانیں بولنے والے لوگ تھے. بالکل. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ 16 کے 16 اپنی زبان میں سن رہے تھے کلام. جو پطرس اس وقت کلام کر رہا تھا لوگوں سے، وہ اپنی اپنی زبان میں سن رہے تھے. روح القدس کی قوت نے ان کو جو ہے یہ انڈرسٹینڈنگ دے دی تھی کہ وہ جو 120 کی جماعت غیر زبان بول رہی تھی، ان کو ایسے ہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ میری لینگویج میں، میری زبان میں گفتگو کر رہا ہے. اور ایک اور ناظرین، ہم بڑی پیاری سی بات ہم سیکھتے ہیں، اور ان کے دل پر چوٹ لگی. دل پر چوٹ لگی. بالکل. آج ہمارے دل پر چوٹ کیوں نہیں لگتی؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہماری کلیسیاؤں کو اور ہمیں جب پاک روح کی آگ نازل ہوتی ہے تو وہ یہی کام ہمارے تھرو کرتی ہے کہ ہم ایسے گناہ جو کہ ڈرگ ایڈکشن،
ज़नाकारी के गुनाह, और ऐसा गुनाह जिससे कि मोहब्बत की जाती है, पाक रूह की आग आके उस पर चोट लगाती है, और गुनाहगार उसी वक्त उन गुनाहों को यीशु की सलीब के पास रख देता है। ये पाक रूह की आग ही है जो हमें बदल सकती है। और आज भी मेरी दुआ इल्तिजा यही है कि आज भी लोगों के दिलों पर चोट लगे और लोगों के दिल जो हैं खुदावन की तरफ माइल हों। उसने कहा तुम रुजू लाओ तो मैं भी रुजू लाऊंगा। ज़रूरत किस बात की है कि हम उसकी तरफ रुजू लाएं, उसकी तरफ आ जाएं और खुदावंद से दुआ और इल्तिजा करें कि खुदावंद मेरा खुदा मुझे रूह से मामूर करे। बेटा एक और हम छोटी सी आपकी राय जानना चाहेंगे। जी जी। रूहुल कुदुस के बारे में आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं, या आप लोगों को रूहुल कुदुस के बारे में अपने ज़ाती तजर्बात में से होकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, रूहुल कुद्दस मुझे जो है, मैं 12 साल की थी जब खुदा ने मुझे पाक रूह से मामूर किया, और मैं अपनी ज़िंदगी में ख़ास तौर पे नौजवानों को ये बताना चाहती हूँ कि जब रूहुल कुद्दस हमारे अंदर होता है तो हम कोई गुनाह नहीं कर सकते। हमारा जो है खुदा का पाक रूह हमारे अंदर पाकीज़गी को लेकर आता है। और जब मैं कॉलेज में भी थी तो मैं बाकी तमाम मेरे जो फ्रेंड्स, आप कनेड कॉलेज में थी? जी जी, हाँ जी। सो जब पाक रूह हमारे अंदर होता है तो हमारे अंदर से बुरी ख्वाहिश जो है वो ख़त्म हो जाती है। खुदा का पाक रूह कहता है कि वो सच्चाई का रूह है और वो तुम्हें मेरी राह दिखाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस किया है कि पाक रूह ने मुझे जो है सच्चाई की राह पर लेके चला। ये मेरी अपनी एफ़र्ट नहीं है, ये खुदा का पाक रूह मेरे अंदर था जो मुझे ये बताता था कि उजाला ये रास्ता ठीक नहीं है, हमने यीशु के रास्ते पे चलना है। सो मेरे अजीज़ों, हमें खुदा के पाक रूह की ज़रूरत है कि वो हमें सही तौर से सही राह पर गाइड करे। और जिस तरह से रूह का फल मोहब्बत है, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है जब से रूहुल कुद्दस मुझे मिला है तो फिर मैंने फ़ील किया कि मेरे अंदर आप मसीह की मोहब्बत आई है, उससे पहले नहीं थी। पाक रूह अपने साथ मसीह की मोहब्बत को लेकर आता है। हालेलुया। और वो तमाम लोग जो उसकी मोहब्बत से गाफिल हैं वो रूह से भी गाफिल हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। क्योंकि जो मसीह में है वही पाक रूह का बपतिस्मा लेता है, क्योंकि लिखा है कि जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें, हाँ जी, जो मसीह रूह पर और ईमान आग से लाता है, हाँ जी, बपतिस्मा देगा। नाज़रीन, हम बड़ी खूबसूरत बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर हम इस बात को बड़ी तफसील में देखें, इस आग के बारे में जो किताब मुक़द्दस में आयात हैं वो तकरीबन 327 आयात किताब मुक़द्दस में हैं। कितनी वसी स्टडी हमें किताब मुक़द्दस में से मिल सकती है कि 327 आयात मौजूद हैं। और जो खुदा का जलाल, जिसे कोहे सीना पर हमने डिफ़ाइन किया कि खुदा का जलाल वहाँ पर था, उसके लिए भी 247 जो आयात हैं वो मौजूद हैं, 247 आयात। और अगर हम रूह की बात करें तो रूह के लिए 467 आयात मौजूद हैं। इन सारी आयात को अगर हम पाइल अप करके आपके पास लेके आ जाएं तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी ज़ख़ीम किताब बन सकती है पाक रूह के ऊपर। मेरा नहीं ख्याल कि बेटा कोई 1000 से कम पेजेस की बने। बिल्कुल सही। और इतनी स्टडी, इतना कुछ पाक रूह के बारे में लिखा गया है। और पाक रूह से खाली ज़िंदगियां जो हैं वो मसीहत से भी खाली ज़िंदगियां हैं। अपने लिए दुआ करें ताकि हर एक बशर को खुदा का रूह मिले, हर एक बशर को खुदा के पाक रूह की नेमत मिले, क्योंकि उसका वादा है कि मैं आखिरी वक्त में तुम्हारे बेटे और बेटियों पर रूह नाज़िल करूँगा और तुम्हारे बेटे और बेटियाँ नबूवत करेंगी। और नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आप देख रहे थे प्रोग्राम सुच्चे मोती फजल टेलीविज़न पर।